हेलो एवरीवन। हमारा आज का केस सिनेरियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। इस चैप्टर के अंदर आईसीएआई के कंटेंट में सिर्फ एक केस स्टडी है इस चैप्टर के ऊपर, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल की केस स्टडी नंबर 9 है। और स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने रिलीज किया था फर्स्ट टाइम फॉर द न्यू सिलेबस, उसके अंदर भी ये केस स्टडी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस स्टडी को। पहले केस स्टडी के फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, देयर आफ्टर क्वेश्चंस की बात करेंगे। सीए अनूठी हैज बीन ऑफर्ड appointment as auditor of a listed company. She has already ticked check boxes relating to her independence vis-a-vis a company and the integrity of the promoters and the key management personnel. Being satisfied, and after sending the formal engagement letter to the company, she is in the midst of प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर कंपनी ऑडिट। तो अब प्लानिंग एक्टिविटीज की बात शुरू हो गई। ओनर ऑफ द कंट्री, वन ऑफ टॉप मोस्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रांड above said company is in the business of producing ball pens, gel pens, marker, folder and stationery items. Business profile of the company include brief history, detail of KMP and brief description of the company activities was obtained by her. She was also studied report relating to the growth of Indian stationery market due to greater demand and impact of government driven scheme like Sarv Shiksha Abhiyan. Besides, she also obtained a risk management policy of the company which contained company strategy to contain various risks. तो बेसिकली यहां पर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो ये एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है। On perusal of the financial statement, it is noticed that company inventory at close of the financial year stood at 200 crore, which constitutes about 25% of the total assets. She is planning to include significant audit risk pertaining to the valuation of inventories. She is also considering the materiality for the financial statements as a whole. ठीक है, तो अब इसमें इनिशियल एक्टिविटीज आई, प्लानिंग एक्टिविटीज आई। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द कंप्लायंस विद independence requirements, verification of the integrity of the promoter and key managerial personnel has been ensured by CA Anuthi. Independence requirement and integrity of the promoter, key managerial persons. In this regard, which of the following statement is likely to be a complete statement? Such activities are required to be performed strictly in terms of the requirements and the procedures outlined in the Code of Ethics issued by ICAI. जहां तक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रमोटर एंड की मैनेजरियल पर्सोनल की बात है, इनकी डिटेल्ड प्रोसीजरल एक्टिविटीज वो SQC1, SA220 एंड SA300 के अंदर आती है। SQC1 जो एक पेरेंट स्टैंडर्ड है और क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस प्रोसीजर्स की बात करता है।
SA 220 जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, अगेन एंगेजमेंट लेवल के ऊपर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस प्रोसीजर्स की बात करता है। एंड SA 300 प्लानिंग एक्टिविटीज के दौरान जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, उसके अंदर इन चीजों को कवर अप किया जाता है। तो ये एक एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं लग रही। Such activities are required to be performed in respect of an audit engagement in accordance with SA 220, बिल्कुल ठीक है। And these preliminary engagement activities are identified in SA 210, गलत। 300 में डिफाइंड है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, 210 में टर्म्स डिफाइंड है ऑडिट एंगेजमेंट की। Such activities are required to be performed in respect of an audit engagement in accordance with SA 220, and these preliminary activities form part of planning and audit as per SA 300. ये एक complete statement लग रही है। Such activities are required to be performed in terms of the requirements and the procedures outlined in Code of Ethics and specifically identified in SA 210. No. Correct answer is option C. ऑप्शन सी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑडिटर ने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ली है कंपनी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बेसिकली इनिशियल स्टेज पे RAP के पर्पस के लिए ली जाती है। देखते हैं क्या कहा गया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर, ठीक है। It may help the auditor in identifying ROMM that management failed to identify, ठीक लग रहा है। बट क्वेश्चन ने क्या कहा? मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बाकी भी ठीक हो सकते हैं और हो सकता है इससे बेटर वे में डिफाइंड हो। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर, ये तो गलत है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर, however it can't help the auditor in identifying risk of material misstatement, गलत है। Understanding of risk management policy is sufficient for an auditor to develop an audit plan, ठीक है। but most appropriate A है। Which of the following is not likely to be a procedure for the auditor to understand the company? To obtain understanding of the entity, its environment, including the internal control, इनमें से कौन सा प्रोसीजर वर्कआउट नहीं करेगा? Performing an online search to identify the press reports relating to the company, ये तो काम करेगा। यदि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, प्रेस मीडिया की रिपोर्ट्स फाइंड आउट करेंगे अबाउट द कंपनी, डेफिनेटली इसके थ्रू वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई any aspect related with the company. Reviewing any new SEBI and stock exchange requirement, because entity is a listed entity, तो listed entity के रेफरेंस में SEBI और स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी हमें डेफिनेटली रिव्यू करनी चाहिए। Review whether fresh money were raised from the public funds, डेफिनेटली इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। जब हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अबाउट द एंटिटी, तो उसमें ऐसे 315 के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर, कंपनी के फंड्स कहां से रेज किए गए हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। सीकिंग द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द बैंकर रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये तो एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया, ये RAP थोड़ी है, ये तो एग्जीक्यूशन स्टेज के अंदर परफॉर्म किए जाने वाला सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, जिसके थ्रू एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस का ईयर एंड वैल्यूएशन कंफर्म किया जाएगा बाय ऑब्टेनिंग एन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंकर्स। तो नॉट लाइकली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, considering the auditor's intention to identify the significant audit risk pertaining to the inventory valuation,
सिग्निफिकेंट रिस्क मेजर करना है इन रिगार्डिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिकॉज एट द ईयर एंड इन्वेंट्री वैल्यू इज ₹200 करोड़ विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 25% ऑफ द टोटल असेट्स। तो एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू, बाकी गलत है, फिर एक सही है। प्रोसीजर प्लान टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क pertaining to inventory valuation form part of overall audit plan। हाँ, ठीक लग रहा है। Procedure plan to identify significant audit risk pertaining to inventory valuation forms part of overall audit strategy। No, audit strategy किस चीज पर फोकस करती है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस पर। ऑडिट स्ट्रेटजी फोकस करती है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड ओवरऑल मैनेजमेंट। इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। और यहां पर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है, ऑडिट प्लान का पार्ट है। प्रोसीजर्स प्लान टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। नहीं, ये टीओसी का पार्ट नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर तो आप इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी कॉन्टिन्यूटी को, उसकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल हमें बताए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंप्लीमेंट कराए गए, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। Procedures planned to identify significant audit risk pertaining to inventory valuation form the part of test of details। तो जो यहां पर बात आ रही है ऑडिट रिस्क की, कि जो प्रोसीजर जिसके थ्रू सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, क्या वो टेस्ट ऑफ डिटेल का पार्ट है? नहीं, ये एक ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग है। क्यों? बिकॉज इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स 25% ऑफ द टोटल असेट्स। तो यहां पर पूछा गया इनमें से कौन सा ट्रू है, तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है। टू सम एक्सटेंट ये टीओडी की स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा, बट जो इसकी प्लानिंग एक्टिविटी है, जो इसके प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं एट द इनिशियल स्टेजेस, वो ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। Next, in relation to materiality level for the financial statements as a whole, which of the following statement is most appropriate? यहां पर ऐसे 320 की अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। Materiality has to be decided by the auditor after identification and assessment of risk of material misstatement। लो जी, पहले आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिलेशन में आ रहा है। मटेरियलिटी पता नहीं है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मटेरियलिटी डिटरमिन करोगे। लॉजिक है कुछ? मटेरियलिटी पता होगी तभी तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या चीज मटेरियल है ये तो पता करो पहले, तभी उसका रिस्क आइडेंटिफाई करोगे। प्रायर टू, ये सही लग रहा है। आफ्टर परफॉर्मिंग आरएपी, आरएपी के अंदर आरओएमएम डिटरमिन होता है, और आरओएमएम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, materiality has to be decided by the auditor at the time of designing test of control and substantive procedure। नो, आरएपी से पहले ही materiality इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। आरएपी से पहले ही प्लानिंग एक्टिविटीज का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। सो बेस्ट आंसर बी, मटेरियलिटी हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर prior to identification and assessment of risk of material misstatements।
सो ये था चैप्टर नंबर 3 का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो या इंटीग्रेटेड केस स्टडी। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की केस स्टडी के लिए। ठीक है।